3. Hi student, my name is Anuj and I am starting a YouTube channel named Samrat Classes. For student, as we all know, this is the time of Corona crisis, so lot of students are therefore don't get their regular classes in school, and so their academics must suffer. So I think that it should be better for we teachers to guide our students for their academics, and hence I am starting this YouTube channel for those who want to start their academic studies and do not do this due to some problems. In my channel, at a start, I am starting to make videos on physics with two classes, 11th and 12th, basically based on CBSE. But students of the other boards can also see my videos, because the syllabus for the matter is same for all the boards. Okay, first of all, we have to consider about what is the syllabus for the 11th class. So the syllabus for the 11th class is as follow. Number 1, फर्स्ट है आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट. पहला है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट. तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट. देखिए इसमें क्या करेंगे, इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट, वी कंसिडर अबाउट फिजिकल वर्ड and its measurement. In the physics, we know that this word has a lot of concept in this. We consider about what are the forces in the world, as according to physics there are 4 forces in the world, and measure the physical quantities. Think about it, what is happening in this unit. Second chapter, second unit is kinematics. In this chapter, we think we are considered about the kinetics of the materials, how the things moves, and we consider about the vector quantities, scalar quantities, and lot of things in this chapter. Third is law of motion. In this chapter, laws of motions. In this chapter, we get a knowledge of the laws, Newtonian laws, what are the laws for the motion and the equation for the motions, and we understand what is the equations and their solutions. So this chapter is very important for our further studies. Fourth chapter is work, energy and power. So fourth chapter is work, energy and power. Work, energy and power. In this chapter, we think about what is the unit of work, what is work, and what is the unit of energy, what is power, what is the interrelation between them. We just consider about this chapter, and we can understand that we have to think about work and what is the energy, what is the power, and what is the interrelation between them, how this relates to our daily life. So this chapter is also very important. Fifth chapter is motion of particles and rigid body. Motion of system of particles. Motion of system of particles and rigid body. Okay. In this chapter, we think about a system, how a whole system
और दे मेक ऑफ लॉट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। हम ये कंसिडर करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ एक सिस्टम जो है वो किस तरह मूव करता है, और हम रियल बॉडी को कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग काफी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। छठी चीज जो है वो है हमारी ग्रेविटेशन। देखिए ऐसा है ना, ग्रेविटी के बारे में नॉर्मली लोगों को मालूम ही होता है, हमें क्लास में पढ़ा हुआ होता है। तो ग्रेविटी क्या है कि भाई कोई भी चीज जो है वो क्यों हमारी धरती की ओर जाती है। हम इस चैप्टर के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड लॉज क्या हैं, इससे रिलेटेड बातें किस का हिसाब से काम करती हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकल्स का आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, क्या क्या नीड्स रहती हैं इसके साथ। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग काफी चीजों को ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से और उसके लॉस के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा चैप्टर्स हैं 7 चैप्टर जो आता है, ये सारे चैप्टर जो है 11th क्लास के थे। अब 7 चैप्टर जो आएगा, 7th यूनिट जो आएगी वो आएगी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसके अंदर हम लोग बल्क मैटर यानी आप जो ठोस मैटर हो, जो आपका पदार्थ होते हैं, बल्क मटेरियल्स होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे उन चीजों के बारे में। 8th चैप्टर है आपका, एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकल्स का हीट के साथ या आपकी एनर्जी के साथ कैसे इंटररिलेशन होता है। हम लोग इसके अंदर डायनेमिक्स के साथ थर्मल को जोड़ने की कोशिश करेंगे, हीट को डायनेमिक्स यानी पार्टिकल के डायनेमिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 9th चैप्टर है बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ perfect gases and kinetic theory of gases. Perfect gases and kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. Okay, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, इस यूनिट के अंदर आपका क्या होगा, इस यूनिट में यही होगा कि आप जो हो समझोगे पहले कि परफेक्ट गैसेस होती क्या है, उनके बिहेवियर किस तरह से होता है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। 10वीं जो यूनिट आती है वो आएगी आपकी ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स, किस तरह से पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, वेव क्या होती है, साउंड क्या है, साउंड किस तरह मूव करती है, अलग अलग तरह की वेव जैसे ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे चलती है, इसमें क्या क्या क्रिएट होता है, वो सब बातें जो है हम ऑसिलेशन और वेव्स में समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं आपके 11th क्लास के सिलेबस के अंदर आते हैं, और इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 12th क्लास के जो यूनिट्स हैं वो जरा समझ लीजिए आप क्या है। देखिए 12th क्लास की यूनिट्स क्या हैं, देखिए 11th क्लास की तो हो गई, अब 12th की यूनिट्स क्या है। पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे काम करती है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि आप कोई स्टैटिक पार्टिकल की बात करते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के विषय में बात कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आप जो हो ये समझने की कोशिश करोगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है,
इलेक्ट्रिसिटी किस तरह की होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के स्टैटिक कंडीशंस की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या है, इससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगला यूनिट जो आती है वो आती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अब एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है, तो एक बात समझ लीजिए कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है समय के अनुसार, तो हम लोग ये कहते हैं वी कंसीडर दैट इट इज अ करंट। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल that of the q charge in a time t, then the current appears. Okay, when a charge particle moves at a time t, then we can say that I current is flowing through it. मीनिंग ये कहने का है कि हम लोग ये चार्ज के बारे में बात करते हैं और चार्ज के साथ समय की बात करते हैं। तो जब चार्ज समय के साथ मूव करता है या मूव कर रहा होता है तो करंट क्रिएट होता है, और वही हम लोग करंट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे इसमें। थर्ड चैप्टर जो आता है वो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड क्या, एंड मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिज्म। देखिए ऐसा है, मैं आपको पूरी बात जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, आप इस बीच के परेशान मत होइएगा कि मैं एकदम इंग्लिश में ही बात करूंगा। आई कंसिडर अबाउट द इंग्लिश मीडियम आल्सो एंड हिंदी मीडियम आल्सो, सो डोंट थिंक दैट आई ओनली गिव द लेक्चर इन इंग्लिश। मैं हिंदी में भी इस चीज को एक्सेप्ट कर दूंगा और इस चीज को मैं समझाऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे होते हैं। देखिए एक चीज समझा दूं मैं आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब कहने का करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट होते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये पढ़ेंगे, और उससे मैग्नेटिज्म की कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये वो होता है, चुंबक होती है या मैग्नेट होता है, वो मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट करता है, अपनी प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करता है, उसके बारे में इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। फोर्थ चैप्टर जो आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक कॉन्सेप्ट है आपके फिजिक्स के अंदर, कॉन्सेप्ट होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी और कॉइल के अंदर करंट का क्रिएट होने की कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंडक्शन के अंदर आता है। और अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, जो हमारे घर में जो वो आती है करंट, हमारे घर में जो करंट आती है वो एसी करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस चैप्टर के अंदर या इस यूनिट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिफ्थ है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है ना, किस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करती हैं और क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैसे होती चलती हैं, इनका काम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ओके, अगली चीज जो आती है छठे जो आती है बात, वो आती है आपकी ऑप्टिक्स। देखिए ये पूरी की पूरा चैप्टर लाइट के बेसिस पे है, लाइट कैसे चलती है, क्या मूवमेंट है उसका, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इससे रिलेटेड सारे के सारे फिनोमेना को इस ऑप्टिक्स के अंदर समझाया जाता है। ठीक है, अगली जो चीज आती है वो आती है आपकी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके,
इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में आप जो हो रेडिएशन के ड्यूअल नेचर को समझने की कोशिश करते हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को समझने की कोशिश करते हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो कि वो पार्टिकल नेचर और साथ में वेव नेचर भी रखता है, लाइट रेडिएशन जो है, जितने भी रेडिएशन हैं वो सब। इसके अलावा जो है मैटर के साथ कैसे रेडिएशन काम करता है, इनका रिलेशन कैसे है रेडिएशन के साथ। देखिए रेडिएशन के बारे में बात समझ लीजिएगा कि रेडिएशन सिर्फ लाइट नहीं है, और भी वेव्स होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं और भी तरह की रेज हैं, तो सभी जो है रेडिएशन के अंदर आ जाती हैं। तो उनका ड्यूअल नेचर कैसे है और मैटर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसे है, वो इस यूनिट के अंदर आप पढ़ते हो। अगला जो आता है वो आएगा आपका, ये आएगा तुम्हारा, और हाँ, एटम एंड न्यूक्लियाई। ओके, देखिए केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे इस बारे में कि एक जो आपका मटेरियल होता है वो एटम फॉर्म में होता है और उसका न्यूक्लियस होता है, तो उसके रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिजिक्स में उनके कॉन्सेप्ट और भी अलग तरह के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे इसके बारे में, एटम्स और न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। नाइन्थ जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे चलती हैं, क्या होती हैं, इसके अलावा ट्रांजिस्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, क्या नाम है आपके जो है आपके वो डायोड क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी इसमें होती है, ठीक है। अच्छा, 10वीं चीज जो आएगी कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, आप जैसे आप समझने की कोशिश करते हो ना, जैसे कि कोई बात होती है तो हम लोग एक बंदे से दूसरे बंदे से बात कर लेते हैं। रेडियो की अगर बात करते हैं तो भैया रेडियो टावर से जो ट्रांसमिशन होता है वो हमारे रेडियो में आ जाता है, हम जो ट्रांसमिशन करना चाहें वो हम दूसरों को भेज सकते हैं। तो इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या होता है, और इसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर बेसिक ही होगा एकदम कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो वो हमें पता चलता है इसके बारे में। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 12th के चैप्टर्स तो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 11th के भी इंपॉर्टेंट है, 12th के ज्यादा थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से लगते हैं क्योंकि इनका जो है ना आगे जाके आप जो वो पकड़ते हो, क्या नाम है, आप स्ट्रीम पकड़ते हो, स्ट्रीम के साथ जुड़े हुए ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो उसको जानने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सभी थी, ये मैंने आपको 12th के सारे यूनिट्स बताई, इससे पहले मैंने 11th की सारी यूनिट्स बताई, और इन्हीं के रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो उनके मैं वीडियोस डालता रहूंगा। मैं जो हूँ आई विल स्टार्ट टू अपलोड वीडियोस फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th फ्रॉम May 1st से डलेंगी वीडियोस, और मैं आई विल ट्राई टू explain every unit and every topic very good. But so subscribe my channel, like and comment on my video, other videos which I will upload on this channel, and also subscribe on my other videos, other channel, which is a Gyan's Time, where I will upload video for motivation, spiritual and inspiration content from the books and from the thought of the peoples of the great admiration. Okay, so आपको यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी 11th और 12th फिजिक्स के बारे में, उसके सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जितनी भी जानकारी इनके रिलेटेड होगी वो मैं आपको टॉपिक वाइज बताते रहूंगा। सारे के सारे मैंने यूनिट्स आपको मैंने अभी बता दी हैं, 1 मई से आपके लिए सारे के सारे मैं वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। इसके अलावा आपको एक और चैनल है जो ज्ञान टाइम्स है, इसके अंदर मैं मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट्स डालूंगा जो अलग अलग बुक से हैं और अलग अलग तो क्या नाम है पीपल्स के थॉट्स की वजह से आया है। तो आप उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके लिए मैंने इसलिए ये चैनल अभी ज्ञान टाइम्स
इसलिए शुरू किया क्योंकि लोग इस समय जो हैं थोड़े से डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। तो आप उससे वो बताओ ना हो, और आप जुड़ सकते हैं। सम्राट क्लास जुड़ेंगे तो आप फिजिक्स के रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो 11 और 12 के हैं उनके वीडियो आप रख सकते हैं। कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।